Israel is not even a big country. केरला जैसे स्टेट से भी छोटा है and have population that is less than half of Mumbai. And कोई natural resource भी नहीं है. Still, even then, today they are called as the startup nation with a GDP of $480 billion. They are the 10th largest weapon exporter in the world, and most importantly, it is literally the 8th most powerful country in the world, even ahead of oil-rich nations like Saudi Arabia and UAE. Now the question is, in spite of having any natural resources, without vast lands or bigger population, with such a hostile environment around the border, how did Israel become such a developed and rich nation? And that is something we will learn from this video with Professor. Thousands of tanks from Egypt, Jordan, Syria surrounded the Israelis. After only 6 days, the war is over. Israel now controls 3.5 times as much land as it had 6 days ago. The days when the Jewish people remained passive in the face of genocidal enemies, those days are over. Under 70 years in establishing what's the most formidable, powerful militaries in the world. And YNet has reported Tel Aviv is the world's #2 city for tech startups, behind only Silicon Valley in the United States. 14th of May 1948, जब almost इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात है, जब इजराइल डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, एंड वेरी नेक्स्ट डे 5 different countries attacked simultaneously, and that armies or these countries' armies came from Egypt, Syria, Jordan, Iraq and Lebanon. मगर एक चौंकाने वाली घटना घटी. आर्मी जो कि और अरब के आर्मी जो ये सोच के आए थे कि they will win this war easily. They pulled back. Yes, you heard correctly. They pulled back due to the psychological war strategy played by Israel. अब सुनेंगे उसके बारे में. इजराइल ने क्या किया, एक सल्सा बॉटल जो है उसको यूज किया and they created such a big noise and धमाके का जो साउंड होता है ना वो क्रिएट किए. अरब के ग्राउंड आर्मी जो सोल्जर्स हैं सोचे कि इजराइल के पास बहुत आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, इसलिए अरब ये वॉर जीतने का जो ख्वाहिश था उसने छोड़ दिया. एंड साल्सा के जो बॉटल है वो उतने एक्यूरेट भी नहीं है, ओके, और एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं है. एंड साल्सा बॉटल जो भी आर्मी थे अरब के आर्मी थे उनको कुछ डैमेज भी नहीं होता. जस्ट बॉटल ऑफ एसिड, ओके, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. बट ड्यू टू द साउंड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज bottle thrown by that aircraft of Israel, वो psychological pressure डाला अरब के ऊपर, and they leave this war. And now you can understand how talented citizen of Israel are. और इजराइल को आप देखोगे ना, हर एक डिकेड में एक वॉर तो उसको फेस करना पड़ता है. मतलब इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ है, हर एक डिकेड में उसको एक वॉर फेस करना पड़ता है. बट स्टिल दे ओवरकम विद दिस प्रॉब्लम एंड बिकम अ पावरफुल कंट्री विदाउट ए मैन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. कैसे, चलिए अब जानते हैं, थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या प्रोसीजर, क्या गेम चेंजिंग पॉलिसी वो लोग फॉलो करते हैं. उनके एजुकेशन सिस्टम जो है भारत के एजुकेशन सिस्टम से पूरा अलग है, अनोखा भी है. लास्ट 15 ईयर्स में इंडिया ने जितना इंजीनियर प्रोड्यूस किया है उतना इजराइल भी का पॉपुलेशन भी नहीं है. स्टिल इजराइल इज द स्टार्टअप हब. कैसे? बिकॉज इजराइल कैन नॉट एफोर्ड टू हैव अनस्किल्ड टैलेंट जो कि इंडिया में भर के हैं. उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम. देयर प्रोजेक्ट सॉल्व्स द कंट्रीज प्रॉब्लम. एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं. 1960 में जब पानी का प्रॉब्लम हुआ था, वन ऑफ द इंजीनियर फ्रॉम इजराइल who invented the iconic drip
irrigation, because of which a farm's water consumption could be reduced by 60% and the crop yield could be increased by 90%. And so today, his company Nitafarm is a global powerhouse with more than 30% share of the global drip irrigation market, and it sells its product in 110 countries including India. Another problem resolved by Israeli scientists was he was fed up of chronic stomach pain, so he ended up creating a digestible disposable camera that is now being used all across the world to diagnose infection in intestinal disorder and cancer. तो यहीं से पता चल रहा है कि इजरायली जो हैं वो सच टैलेंटेड होते हैं, इतने टैलेंटेड होते हैं कि दे ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, दे थिंक इन दैट वे. अभी बात करते हैं वो बिजनेस उन्होंने कितना बढ़ाया है, कैसे बढ़ाया है. इजराइल के मार्केट इतना स्मॉल है, ऑब्वियसली जो केरला के पॉपुलेशन से कम है तो उनकी मार्केट भी बहुत स्मॉल है. सो डी मार्ट, रिलायंस जैसे और अमेजन जैसे कि बड़ी कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी वहां पे जाना नहीं चाहती. सेम विथ other companies who don't want to invest because the country is always under attack and having territorial problem, और मार्केट भी इतनी बड़ी नहीं है कि उतना रिस्क ले पाए. बट इजरायली गवर्नमेंट ने एक गेम चेंजिंग पॉलिसी लेके आया जो कि चेंज कर दिया फेस ऑफ इजराइल इकोनॉमी फॉरएवर. This initiative was called that Yozma Fund, which was a government venture capital fund. In this policy, they invited international investor with a condition that government invest करेगा 40% और फॉरेन कंपनी और जो इन्वेस्टर कंपनी इन्वेस्ट करेगा रेस्ट 60% ऑन इजरायली स्टार्टअप्स. अब उसके सिवा फॉरेन इन्वेस्टर तो ऑप्शन भी रहेगा कि चीपली वो बायबैक कर सकता है गवर्नमेंट का स्टेक जो भी 40% है इन नेक्स्ट 5 years. So basically the government of Israel would take 40% risk and selling their stake, by which all the profits can be taken by either the existing investor or the new investor. कितना जबरदस्त लुक्रेटिव डील है भाई. अब मैं इंडिया के हिसाब से मैं बताता हूँ. समझ लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ investing 40% in Ola and asking SBI Bank to join the hands with it, and then after 5 years when Ola become a big settled company, then SBI Bank itself can buy back or buy the stake of Indian government, okay, जो कि 40% है. Now SBI and India and Ola will be benefited, and same way economy itself. उसी तरह अब इजराइल ने इस स्ट्रेटेजी से वर्ल्ड इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, इन्वेस्ट करवाया इन अर्ली स्टेज ऑफ इजरायली स्टार्टअप. एंड इन टोटल योजना फंड ने $263 million फॉर 164 स्टार्टअप के लिए जनरेट किया, और इजराइल गवर्नमेंट ने $100 million उसमें इन्वेस्ट किया. कुछ स्टार्टअप लाइक मोबिली जो कि इंटेल को सेल हो गया विद 5.3 billion, एम सिस्टम टू स्कैंडिक्स विद 1.6 billion, रियल टाइम ट्रैफिक गॉट सोल्ड टू गूगल विद 1.3 billion. इसके सिवा $million and billion के डील पेड अक्रॉस द डोमेन इन फूड, गेमिंग, मेडिकल एंड साइबर सिक्योरिटी. दिस इज द रीजन व्हाई टुडे Israel is known as the startup nation with more than 6,000 startups and has a per capita venture capital that is 28 times more than the United States itself. अब यहाँ से हमें समझ में आया कि इतने छोटा सा नेशन, कोई रिसोर्स नहीं है, कुछ लैंड नहीं है, कुछ मैन पावर नहीं है, बट विथ देयर पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, दे आर एबल टू क्रिएट ए हब व्हिच इज बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स. सो हम इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? इन 2050 हम इंडियंस ये नहीं बोलना चाहिए कि 20 साल पहले यंगेस्ट, बिगेस्ट, टैलेंटेड वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड हमारे पास था, एंड
उसके रहने के बाद भी हम स्टिल पीछे हैं दुनिया में फॉर टॉप 5 इकोनॉमी टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर यंगेस्ट मास टैलेंट इन द वर्ल्ड। हमें एजुकेशन के क्वालिटी में इंप्रूव करना चाहिए। वो ना 3 इडियट वाला स्टडी वो लेके आना है। हमें जानना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और उस पढ़ने का फायदा क्या है और उसको कैसे हम प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। नहीं कि करंट एजुकेशन सिस्टम जहां पे हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम एक ऑपरेशन रिसोर्स बन जाएंगे रदर देन एक क्रिएटिव रिसोर्स। अब उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो अभी इंडिया का सिचुएशन है, वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आपका ओपिनियन प्लीज जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड या दैट्स इज ऑल अबाउट विद दिस प्रोफेसर इज साइनिंग ऑफ। सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।